Hello students, I hope you all must be having a great time. So this is me Gaurav Karan from Ved Science Foundation and I welcome you all to this wonderful series of Ved Science Foundation. Now you can hit the bell icon for the regular updates and also you can subscribe to our channel, that is Ved Science Foundation. So we were discussing the most important questions with respect to chapter number 2 of NCERT, that is history, namely nationalism in India. So this is the part 3 of our chapter and it plays the very important role in CBC as well as for NTSC. So this is our NTSC special series. So now we shall be moving further towards this question answers session. So let's begin. So yes, so this is the name of the topic, that is most important questions, nationalism in India, NTSC stage 1 and 2. Alright, so this is the question number first. Now before starting, I must tell you that the purpose of giving the question answer series is that you must be aware that, so that you could get the style, or you could analyze the pattern of the examination. This is how the examination, the questions are being asked in the examination, and this is the same format. Okay, so our basic purpose is to just make you familiar with the question answers and how the questions are asked in NTSC, especially in stage 2. So it is very much important for you to look carefully and to just watch this video again and again. Okay, so let's begin. So this is question number first. Elections to the provincial councils was set up by. Now this is a direct question. Okay, uh, you have four options: Government of India Act 1919, followed by 1935, Pitt's India Act of 1773, or Indian Councils Act of 1809. Now the provincial councils, see, elections occurred after a very long time. Okay, so I think if you just see option number D, Indian Councils Act of 1809, so we could easily eliminate this option. Okay, in 1809. Now we are left with the three options, and the correct option for this answer is, that is option number A, Government of India Act 1919. Now this act was also known as Chelmsford Reforms. Okay, Montagu Chelmsford Reforms. All right, or it was also known as Montfort Reforms. Okay, now actually it was introduced by the British Parliament that sought to increase the participation of Indians in the administration of their country. Alright, so this was the basic purpose of introducing this act, Government of India Act, and actually this act has a lot of features. Okay, but in NCERT not much has been given with respect to this act, so we shall not be discussing in detail. Okay, but for any other examination it is very much important. This act actually is very much important for any other examination, for example for UPSC exam or for SSC exam or for any other examination. Alright, but for NTSC, you just need to know the basic premise of this act. Okay, so moving on to question number 2, who among the following favored for a return to council politics? Now if you have seen my videos, alright, on nationalism in India, so you could easily answer this question by eliminating option number second. Okay, I have continuously focused on Jawaharlal Nehru with respect to council politics. He has nothing to do with council politics. He was always against for the council politics. Okay, now, so who among the following favored for a return to council politics? So if I just eliminate this option Jawaharlal Nehru, we are left with only two options, that is 1 and 3. So here we could easily eliminate 2. Alright, so Motilal Nehru was the main figure behind it, and also C.R. Das. Okay, so these two figures were the main, actually they were main protagonist behind the council politics. So I could easily mark
Option number C. Okay, option C is the correct answer for this question. That is question number 2, 1 and 3. Return to council politics. किन किन दो महारथियों ने इसको फेवर किया था? सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे. इन दोनों ने काउंसिल पॉलिटिक्स को फेवर किया था. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सीबीएसई के रिस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. नाउ व्हाई with respect to CBSE? Just because first 20 questions of CBSE comprises of objective questions, so that means you need to focus on the objective part also. Okay, so this would help you out in scoring good marks while while attempting the CBSE questions. Okay, then arrange the following events in chronological order. अब इनको chronological order में आपको अरेंज करना है. ठीक है, पूना पैक्ट, सॉल्ट मार्च, साइमन कमीशन एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं. सबसे पहले जो हुआ था मैं वो लिख देता हूं. ओके, सबसे पहले आया था साइमन कमीशन, दैट इज इन द ईयर 1928. ऑलराइट, so first came the Simon Commission, okay, and then came the Salt March of 1930. okay, 1930 में सॉल्ट मार्च आया. तो कब आया? 12th मार्च को स्टार्ट हुआ था. ठीक है, 1930 में, और 16 अप्रैल को खत्म किया गया. ठीक है, 16 अप्रैल खत्म किया गया. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं हम किस पर? उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 में हुआ था. ठीक है, इसका मैं एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं तो सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931, ये इसका एग्जैक्ट डेट है. ठीक है, सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931, सो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और उसके बाद हुआ था क्या? उसके बाद हुआ था पूना पैक्ट इन द ईयर 1932. ऑलराइट, पूना पैक्ट इन द ईयर 1932. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन वी वुड इजिली सी. तो हमें क्या करना है? इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले साइमन कमीशन आया, यानी कि थर्ड पहला आएगा, तो ए तो हटा ही दो. ठीक है, ऑप्शन ए तो इजीली एलिमिनेट हो गया. थर्ड पहले आएगा. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सेकंड. तो सेकंड, थर्ड, सी ऑप्शन में सेकंड आ रहा है. तो सिंपली और किसी ऑप्शन में हमें सेकंड दिख नहीं रहा है थर्ड के बाद, तो सी. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ऑलराइट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट. So moving on to the next question. Now, I would like to explain this to you. Let us just understand one by one the importance of Pune Pact and Salt March, Simon Commission and Second Roundtable Conference. See, हुआ क्या था? On August 16, 1932. The British Prime Minister in the name of Ramsay MacDonald, he actually proposed, rather he announced the communal award which provided for the separate electorate. Now this is not an award like कि कोई पुरस्कार मिल रहा है या कुछ ऐसा है. ठीक है, so it was an announcement made by the British Prime Minister in the name of Ramsay MacDonald for introducing the separate electorate for the depressed classes, as well as for the Muslims, for the Europeans, for the Sikhs, for the Anglo-Indians, and for the Indian-based Christians. Okay, so he decided just to give separate electorate. Okay, now actually this award of 1932, which was introduced by MacDonald, it was built on the notion of separate electorate that the British government had already put in place, through the previous reform of like Parliamentary reform. Okay, एंड पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में ही ये बात ब्रिटिशर्स रख चुके थे. ये
बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा था, ठीक है। एंड सेम गोज विद दी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो 1909 में, जो 1919 में जो एक्ट ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें भी ये इस बात को रखा गया। एनी हाउ, तो अंडर अ सच इलेक्टोरेट, अब यानी कि इस इलेक्टोरेट को रखने का फायदा क्या था कि जितनी भी कम्युनिटी है, यानी अभी जो मैंने कम्युनिटीज का नाम लिया, सो ईच कम्युनिटी वाज टू बी इलेक्टेड, और रादर दे वर टू बी allocated a number of seats in the legislature, and only member of these communities would be eligible to vote to elect a representative of the same community। यानी कि अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो मुस्लिम को अगर आप इलेक्ट करेंगे तो वो मुस्लिम लोग ही होंगे जो उनको इलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर क्रिश्चियंस लोगों को आप इलेक्ट करेंगे तो उनको इलेक्ट कौन करेगा? सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी ही करेगी। ऑलराइट, सो दिस वाज द मेन पर्पस। बट महात्मा गांधी जी जो थे, ये महात्मा गांधी जी इन चीजों के खिलाफ थे, और उनकी शुरू से यही एक इच्छा रही थी कि इंडियन शुड बी यूनाइटेड रादर देन डिवाइडेड। तो महात्मा गांधी इस चीज के तो बिल्कुल ही खिलाफ थे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। एंड अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी कि डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की जाए। ये एक मेन मुद्दा था। ओके, ये क्या था? ये एक मेन मुद्दा था। सो अंबेडकर वाज इन द फेवर ऑफ द अवार्ड, ओके। एंड उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी, व्हाट एक्चुअली happened according to him, political solutions like separate electorate would work। यानी कि अगर डिप्रेस क्लासेस को अपलिफ्ट करना है, उनको एम्पावर करना है, डिप्रेस क्लासेस को अगर एम्पावर करना है, तो एक ही चीज से हम उनको एम्पावर कर सकते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंबेडकर, ठीक है। तो ये था पूना पैक्ट, जो कि अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था, और गांधी जी बिल्कुल खिलाफ थे, इसके कम्युनल अवार्ड के बिल्कुल खिलाफ थे। ओके, तो फिर भी हुआ क्या था कि गांधी जी ने अंबेडकर जी को समझाया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे, तो इसको ना अपनाते हुए हम सीधा साधा उनको रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है। तो जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो एक डिसीजन निकल के आया, जो निचोड़ निकल के आया, जो निष्कर्ष निकल के आया, वो क्या था? वो था पूना पैक्ट, जिसमें अंबेडकर जी को अपना जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थी वो वापस लेनी पड़ी, कि सेपरेट इलेक्टोरेट से अच्छा हम क्या करेंगे, हम रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। एक तो ये था। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सॉल्ट मार्च के ऊपर। देखिए सॉल्ट मार्च क्या था। 1930 तक आते आते जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब तो हम पूर्ण स्वराज लेंगे। नाउ एज यू नो दैट इन द ईयर 1929 at Lahore session, the resolution was taken under the presidentship of Jawaharlal Nehru, which was known as the Poorn Swaraj or the complete independence, okay, because Britishers were mean to offer the dominant status to India, अधिराज्य की बात करती, but we were not in favor of accepting the dominant status. Why we should accept the dominant status? No, nothing less than complete independence would be acceptable to Indians. So this was proposed in Lahore session of 1929. Okay, now it started actually this Lahore session. I mean, what happened on 26 January 1930, when we actually took the pledge of Poorna Swaraj. So it was celebrated as the Independence Day, and it was decided that the civil disobedience was to be the means employed to achieve it. तो सिविल डिसओबीडियंस ही एक ऐसा हथियार होगा उसको अचीव करने के लिए उस दिन ये रेजोल्यूशन रखा गया। और महात्मा गांधी जी को एक्चुअली उनसे बोला गया कि महात्मा गांधी जी अब समय आ गया है, आप प्लीज लॉन्च कर दीजिए
ऐसा कुछ, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, और वो आइडिया क्या था कि सॉल्ट ही एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसा एसेंशियल आइटम है जो कि ब्रिटिशर्स के दिमाग को घुमा सकता है। तो एक्चुअली उस टाइम जो वाइस रॉय था वो लॉर्ड इरविन था, और जो लॉर्ड इरविन था उसको इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ा, ओके। और कांग्रेस के कुछ लोग भी काफी डाउट में थे, वो स्केप्टिकल थे कि पता नहीं ये ठीक है या गलत है। ऑलराइट, दे वर अनश्योर ऑफ दैट। So Viceroy was also, he was hardly, perturbed by the threat of the salt protest and all right. And also government did nothing to prevent it actually. But गांधी जी का जो चॉइस था, जो सॉल्ट चूज करने का चॉइस था, वो बहुत ही जबरदस्त था, बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने सभी भारतीय नागरिकों की आत्मा को छू लिया था, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जो कि गरीब भी इस्तेमाल करता है, जो कि मिडिल मैन भी इस्तेमाल करता है, जो कि रिच भी इस्तेमाल करता है। तो लोग काफी हर्ट हो चुके थे। जो 1882 में जो सॉल्ट एक्ट आया था उसकी वजह से लोग काफी हर्ट थे, ओके। और इस एक्ट को तोड़ना, जो 1882 एक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, सॉल्ट एक्ट जो ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, नाउ द ब्रेकिंग एक्चुअली द if you violate the act, so it becomes a criminal offense for everyone. So गांधी जी ने इसमें भी उम्मीद लगाई कि अगर मैं सॉल्ट को बीच में लेकर के आता हूं, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट तो सभी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का भी स्कोप आ जाता है, यूनाइट होने का। तो ये हुआ। अब गांधी जी ने ये लॉर्ड इरविन को तो बता दिया कि इरविन जी ये हमारा प्लान है 2 मार्च 1930 को, ठीक है। इरविन जी अपना शान बैठे होते हैं, चलो आप इतने साल हो गए कुछ कर तो पाए नहीं, आप क्या कर लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। तो उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा किया, ठीक है। एक्चुअली मतलब लोग उनके पास खुद ही चले आए और साबरमती आश्रम से उन्होंने जो मार्च था स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 में, ऑलराइट। और गांव गांव गांधी जी घूमे, पैदल घूमे, ठीक है। और अंत में वो कोस्टल एरिया पहुंचे जिसका नाम था डांडी, ओके। एंड देयर ही एक्चुअली ब्रोक द सॉल्ट लॉ, द सॉल्ट एक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन द ईयर 1882, ऑलराइट। एंड गांधी जी स्टार्टेड द मार्च विद ओनली 80 फॉलोअर्स, ठीक है, जहां पर बहुत लोगों ने उनको और आगे ज्वाइन किया। और गांधी जी ने सबको यह बतला दिया था पहले कि भैया किसी तरीके का वायलेंस नहीं होगा, तभी हमारे को जीत मिलेगी, ठीक है। यह हुआ। तो गांधी जी ने बहुत लोगों को समझाया, बहुत लोगों को अपनी बातें कन्विंस करी, यहां तक कि जो सरोजनी नायडू जी थी उन्होंने भी गांधी जी को ज्वाइन किया, ठीक है। और हर रोज नए नए लोग गांधी जी को ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है, जब तक वो डांडी ना पहुंच जाए। तो फाइनली हुआ क्या, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जब वो 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच गए, ओके। सो दिस वाज डन, सो दिस वाज एक्चुअली द सॉल्ट मार्च। अब आ जाते हैं हम साइमन कमीशन। देखिए होता क्या है, ब्रिटिशर्स हर 10 साल में एक एक्ट लाते थे, ठीक है। 1909 में एक्ट लाए थे, ठीक है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। फिर 1919 में लाए थे, उसके 10 साल बाद वो क्या था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। फिर उसके बाद 1929 में एक और एक्ट आना था। तो हर 10 साल में एक एक्ट लाते थे ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि जो पिछला एक्ट उन्होंने बनाया था उसकी समीक्षा करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए वो एक्ट जो थे ब्रिटिशर्स लाते थे कि जो एक्ट हमने बनाया है क्या वो सही है, क्या वो सही मायने में वो काम कर रहा है। जस्ट उसको रिव्यू करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए ब्रिटिशर हर 10 साल में एक्ट बनाते थे। अब साइमन कमीशन भी एक ऐसा एज सच एक्ट था, ठीक है। अब साइमन कमीशन क्यों लाया गया? जो 1919 में ब्रिटिशर्स ने एक्ट बनाया था, 1919 में, याद रखना, उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन को लाया गया, ठीक है। अब ये एक साल पहले ही आ गया।
1 साल पहले क्यों आ गए? क्योंकि जो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव की सरकार थी ना, उसको यह डर हो गया था कि जो लेबर वाली जो लेबर वाली पार्टी है, जो लेबर पार्टी है, वो हमको हरा सकती है, तो क्यों ना हम पहले ही लेकर के आ जाए साइमन कमीशन। चलो ठीक है, ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। साइमन कमीशन आया। अब साइमन कमीशन के आने का पर्पस ये था कि इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करना। अब इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करोगे, चलो बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें यह प्रावधान था कि उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर्स इंक्लूड नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडियंस के पास तो अकल ही नहीं है। हम इंडियंस के ऊपर इतने साल से राज कर रहे हैं, उनको हम चला रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। इंडियंस को क्या आता है? इंडियंस को कुछ नहीं आता। ये साइमन कमीशन की सोच थी, ये ब्रिटिशर्स की सोच थी, ठीक है। और लॉर्ड बर्कनहेड एक्चुअली ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द सेटिंग अप ऑफ द साइमन कमीशन। उसने चैलेंज किया था इंडियंस को, आप इंडियंस लॉ नहीं बना सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप में इतना दिमाग ही नहीं है। हमने एक्सेप्ट किया, हमने ये एक्सेप्ट किया, और हमने उनके एक्चुअली चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ये आप गलत बोल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। इंडियंस में, क्योंकि ब्रिटिशर से पहले हमारे खुद के जितने भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारा ब्रिटिशर से पहले ही था, और हमने खुद अपनी कंट्री को गवर्न किया है। तो आप हमें, आपका कोई हक नहीं है बोलने का कि हम जो है वो लॉ नहीं बना सकते। तो ये बर्कनहेड ने चैलेंज किया और हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ठीक है। ये बहुत गलत बात बोली बर्कनहेड ने, ओके। तो इंडियंस एक्चुअली दे वर आउटरेज्ड बिकॉज दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कमीशन। तो कांग्रेस ने डिसाइड किया बॉयकॉटिंग द कमीशन। कौन से सेशन में? मैड्रास सेशन ऑफ 1927 में कांग्रेस ने डिसाइड किया, ठीक है। यहां तक कि जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, विच वॉज लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी बॉयकॉट किया। हालांकि कुछ मुस्लिम लोगों ने इसको फेवर भी किया, बट मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको बॉयकॉट किया, ओके। तो हुआ क्या, जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ साइमन कमीशन के रिस्पेक्ट में, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक है। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी बहुत बेरहमी से मारा गया, ठीक है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और लाहौर में तो लाला लाजपत राय जो थे वो प्रोटेस्ट करने आए साइमन कमीशन के अगेंस्ट, तो ही वाज बैडली वुंडेड एंड आफ्टर सम डेज ही वाज सकम टू हिज इंजरीज, और वो मर गए, ठीक है। तो ये था साइमन कमीशन। देन कम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली ये रिजल्ट था गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ था, ठीक है। देखिए गांधी जी एक्चुअली रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू जी भी थी, और मदन मोहन मालवीय भी थे, और मोहम्मद इकबाल भी थे, बहुत बहुत सारे लोग थे, एस के दत्ता भी थे, सर सैयद अली इमाम भी थे, बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ गए थे लंदन में, ठीक है। तो गांधी जी ने लंदन में जब जाए, वो एक्चुअली जब गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सीन ही अलग है। इंडियंस को तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने की जगह है, आप उनसे उनका सारा हक छीन रहे हो, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन, आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं। यानी कि वो कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस पैदा करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। गांधी जी की शर्त थी, गांधी जी की क्या शर्त थी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं इमीडिएटली, एंड आई मीन इट वाज टू बी फुल बोथ एट द सेंटर एज वेल एज फॉर द प्रोविंस, ठीक है। और कांग्रेस अलोन रिप्रेजेंटेड द पॉलिटिकल इंडिया। तो कांग्रेस एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। और गांधी जी का एक मकसद और था, जो अनटचेबल्स थे और जो हिंदूज थे, ठीक है, द अनटचेबल्स हु वर हिंदूज एक्चुअली, ठीक है, दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज माइनॉरिटी बिकॉज दे आर नॉट माइनॉरिटी, ओके। एंड देयर शुड बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट, देयर शुड बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट और स्पेशल सेफगार्ड फॉर मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज इन इंडिया। अगर ये होगा तो हमारी कंट्री बहुत बुरी तरीके से टूट जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। तो ये मैं एकदम करने में दूंगा। बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अ फेलियर, ऑफ कोर्स इट वाज अ फेलियर, ठीक है, क्योंकि गांधी जी
के मन में एक भ्रम था कि मतलब उनके मन में उनको एक्चुअली जो इरविन ने मैनिपुलेट किया कि आपके लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर के आने वाले हैं, ये करने वाले हैं। जब गांधी जी असलियत में जब वहां पर गए लंदन में और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें सुनी, तो उनको तो ये लगा कि भैया यहाँ पर तो उनकी कोई और ही कहानी चल रही है। हम तो कोशिश में लगे हुए कि अपने देश को इंटीग्रेट करें, यहां तो हमारे देश को तोड़ने की बात आ रही है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब गांधी जी दिसंबर 11 1931 में जब ये खत्म हुआ और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो गांधी जी केम बैक टू पवेलियन विदाउट एनी स्कोर, विदाउट एनी रन, तो वो डक आउट हो गए और वापस आ गए। एनी हाउ, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है। देन महात्मा गांधी चोज सॉल्ट लॉ टू ब्रेक बिकॉज, हाँ जी, क्योंकि द गवर्नमेंट पुट टैक्स टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट, सॉल्ट इज यूज्ड बाय द कॉमन पीपल, सॉल्ट वाज वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट, या फिर ही वांटेड टू सपोर्ट पीपल ऑफ गुजरात। अभी मैंने समझाया था एक्सप्लेनेशन में, तो सिंपली सॉल्ट इज यूज्ड बाय द कॉमन पीपल। ठीक है, यहां पे सॉल्ट मार्क मैंने समझाया था, सो इट वाज यूज्ड बाय द कॉमन पीपल। ऑलराइट, नाउ अब आ जाते हैं, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, फिफ्थ, रिमार्केबल फीचर ऑफ द या फीचर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट, ठीक है, अब यहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात हो रही है, ध्यान से अब आपको ये देखना है। ऑलराइट, नाउ एट लाहौर सेशन वर्किंग कमिटी ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अभी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ऑलराइट, द मूवमेंट अचीव्ड इंटरनेशनल अटेंशन, ऑफ कोर्स इट इज ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी में। Then, the Pune Pact, which was signed between the British government and Mahatma Gandhi in 1934, provided for, हाँ जी, पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट अब आपको इस ऑप्शन में से क्लियर दिखाई दे सकता है। क्रिएशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, नो इट वाज नॉट। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। The separate electorates for the Harijans, absolutely wrong. A joint electorate with the reservation for Harijans, of course. All right. तो जब भी रिजर्वेशन की बात आएगी तो वो पूना पैक्ट के संदर्भ में होगा, तो आपको ये बात याद रखनी है। A joint electorate with the reservation for Harijans. All right. So D is the correct option. Now, who drafted the resolution on fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931? देखिए, दो लीडर तो थे, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बट जो मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, जो मेन फिगर के बारे में इसमें बात करता हूं, तो नन अदर देन इट कम्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931, जहां पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई। ठीक है, अब वो कितने राइट्स थे वो आपको जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे राइट्स थे। ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक 28 से भी ज्यादा थे, लगभग इतने थे। ठीक है, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। जी हाँ, बिल्कुल, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया था, डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। ठीक है, फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। पूना एक्ट special provisions for the representation of the depressed people in the local bodies and civil services were made. तो civil services की एक्चुअली कुछ बात इसमें थी नहीं, तो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सेकंड यहां से गया, सेकंड यहां से गया, सेकंड यहां से गया, ऑफ कोर्स सी आएगा, ऑफ कोर्स सी आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑफ कोर्स सेकंड में ही किया था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं किया था। देन वंदे मातरम वाज द सोर्स ऑफ पेट्रियोटिज्म फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट एंड हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक। किस किताब से लिया गया है? बहुत सिंपल है, आनंद मत। आनंद मत, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस बहुत सारे लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आनंद मत ये आपको याद रखना है। मेन प्रोविजंस ऑफ या फिर प्रोविजंस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, तो गांधी इरविन पैक्ट के बीच में जो मेन प्रोविजन था या थे
वो क्या थे, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, CDM वॉज सस्पेंडेड, बिल्कुल सही। पॉलिटिकल political prisoners were to be released, okay. Gandhiji was to attend second roundtable conference, absolutely correct. And Mahatma Gandhi was to attend थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, हमने सॉरी हुआ था बट हमने अटेंड नहीं किया था, ऑलराइट, उसको हमने अटेंड नहीं किया था। सो आई कुड इजीली एलिमिनेट ऑप्शन 4। तो 4 यहां से गया, 4 यहां से गया, ऑल ऑफ द अबव में भी 4 आएगा तो वहां से गया, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड तो आना ही है, आपको पता था, और फर्स्ट तो फिर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, तो दैट इज ऑप्शन बी, ऑलराइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 10th का बी हो गया। देन मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में आपको देखिए सबसे पहली चीज जो मैंने आपको इसमें बताई थी, अगर आपको कुछ ना याद रहे तो आपको कम से कम लाहौर सेशन और नागपुर सेशन तो याद रहेगा। लाहौर सेशन आपको क्यों याद रह सकता है, क्योंकि लाहौर सेशन में रेजोल्यूशन लिया गया था पूर्ण स्वराज का, तो वो 1929 में हुआ था, तो सेकंड का तो बी होना ही होना है। अब यहां पर बी नहीं आ रहा, यहां पर बी नहीं आ रहा, यहां पर बी नहीं आ रहा, ठीक है, यहां पर बी नहीं आ रहा, सिंपली मैं सी लगा दूंगा, मुझे और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। सेकंड का बी, ऑलराइट। तो फर्स्ट का डी हो गया, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 32 में आ गई, नागपुर सेशन 1920 में हो गया था, थर्ड का हो गया, और फोर्थ का सी हो गया, ठीक है। स्वराज पार्टी 1923 में फॉर्म हो चुकी थी, बहुत सिंपल है। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी। इनमें से महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी नहीं थी, ठीक है। सत्याग्रह थी, स्वराज थी, नॉन वायलेंस भी थी, और कम्युनिज्म महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी नहीं थी, ठीक है। नॉट, डज नॉट रिलेट टू द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी, तो कम्युनिज्म इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। So Vaibhav Raj is online. So hello Vaibhav Raj, I welcome you to this wonderful session, but you are bit late, but no problem, you can just watch this video once again and you can just have a glimpse on the important questions, okay. So these were the important questions, alright, with respect to nationalism in India. I hope you all must have understood the questions very much clearly. So please do watch this video again and again, and believe me, trust me, have faith in me. These are the most important questions you would be getting in your NTC examination for stage 1 and as well as for stage 2. You just need to watch the videos again and again, and just go through the questions, or you may write the questions, or if not, I mean, if you're not interested in writing, then I would also provide the PDF for this series as well, so you can join our Telegram channel for that, and also you can follow our Instagram channel, our Facebook channel and all, that is Ved Science Foundation, and also you can hit the bell icon for the regular updates. So thank you and have a very wonderful day.